Hello friends. In the sequence of TNT lectures for CVPAC students in virtual classes, we are in the previous class we are discussing about the scriptural segment of the autology, or the five of the premier autology disease as explained in Shishir Samhita. Four of them are Karn, Shul, Nad, Shved, and Badir. We have already gone through the first three of them, and let me uh, engage you with the topic. And today's topic we will be in continuation of the previous topic we will discussing, that is Shul, Nad, and Badhirya we have done. And today we will continue the same discussion. And as far as the Shul is concerned, it is compared with modern counterpart with Otalgia. The current shade is Venu Ghosham, Geeta Janam Nirghosham. This is the tabular discussion or the tabular comparison we have done in the previous class. So let me take a pen first. Okay, now, okay, give me a minute. So, give me a minute. So we will continue with the discussion. As far as the first three disorders are concerned, the Karnashul represents encompasses all the disorders which are principally related to the pain in the ear. So any kind of a pain in the ear, like for in the case of acute otitis media or pharyngitis or acute otitis externa with invasion of the canal, any cause of the pain will be encompassed into or inculcated into the Ayurvedic scripture with the name of Karnashul. Next, we have gone through Karn Nad and Karn Shved. Today, we will continue with Karn Badhirya. Badhirya is the today's topic of discussion. So, again, Badhirya in the scripture, we are primarily more concerned about the references of Acharya Shushruta. Again, I will like to reiterate here, any student having difficulty with English language or uh, Hindi language will can have this discussion in uh, in English as well, and so in this class we will continue with the Hindi language, and any student having any difficulty with the Hindi language can comment in the on the channel section, and we'll have a reorganized class of the same topic in English. तो हम पिछली क्लास में हमने कर्ण नाद और श्वेद के बारे में विस्तार से चर्चा की थी, और विभिन्न आचार्यों के डिफरेंशिएशन ओपिनियन और टीकाओं के संदर्भ में भी हमने बात की थी. तो कर्ण बाधिर्य जो है, जो आज का टॉपिक है, इट अगेन एनकम्पासेस. इस बाधिर्य शब्द में सभी प्रकार का हियरिंग लॉस जो है वो इसमें आ जाएगा. सभी प्रकार का हियरिंग लॉस इसमें आ जाएगा. सॉरी, okay, now it's responding. Sorry for a slow draw. Pen now. Okay, so this badhirya means all kind of a hearing loss. So any kind of a hearing loss, starting from the sensorineural or a canal organized or a tympanic membrane perforation, or of the middle ear pathology, or of the central nervous system, all are encompasses in कर्ण बाधिर्य. द सुश्रुत संहिता में जो श्लोक आया वो अभी आपके ये सामने, ये जो श्लोक आपको याद भी करना है. पहले चार व्याधियों के श्लोक, शूल, नाद, श्वेद और बाधिर्य के श्लोक आपको याद कर लेने चाहिए, क्योंकि आपकी सब्जेक्ट की डिविएशन उससे नहीं होगी और क्वालिटी भी चेंज नहीं होगी. श्लोक लिखने के बाद आपको हिंदी या अंग्रेजी भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो श्लोक सुश्रुत ने कहा, स एव शब्दानुवहा यदा सिरा, स एव शब्दानुवहा यदा सिरा, स एव शब्दानुवहा यदा सिरा कफानुयातो व्यन्नुम प्रत्यतिष्ठति तदा नरस्य अप्रतिकार सेविनो भवेतु बाधिर्यम असंशयम
खलु 20वें अध्याय का 8वां वर्ष है, यानी कि श्लोक है। वही शब्दवाही शिरा, शब्दवाही शिरा, शिरा का अर्थ यहाँ से वेन से आप नहीं ले सकते हैं। ये एक कंडक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन मैकेनिज्म की तरफ, यानी कि नर्व की तरफ इशारा जा रहा करती है। So the nerve which is responsible for conduction of the sound is obviously eighth nerve, also called as statoacoustic nerve or auditory nerve. तो शिरा का अर्थ जो है विभिन्न स्थानों पर बदल सकता है। So it is not related to any kind of a vascular identity or entity, rather is indicating of a neural structure. तो वही शब्दवाही शिरा कफ से आवृत होकर, कफ दोष से आवृत होकर, कफ जो है यूजुअली ऑब्स्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है और स्पेस ऑक्युपाइंग पैथोलॉजी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कफ का अर्थ जो है वो व्याधि के संदर्भ में चेंज हो जाता है। ये वर्सेटाइल टर्म्स हैं तीनों, दोषों की टर्म्स जो है इस श्लोक में वर्सेटाइल है। इसको केवल आप वो 5 प्रकार के कफ के संदर्भ में ना लेके यहाँ पे स्रोतो अवरोध के संदर्भ में ले सकते हैं, या फिर जो है आप सेंस ऑफ स्पेस ऑक्युपाइंग लीजन पैथोलॉजी के रूप में। व्यन्युम सत्य तिष्ठति, व्यन्युम शब्द पहली बार हमने शास्त्र में ये शब्द पढ़ा, और इस पे टीका अगर देखें तो व्यन्युम सत्य का अर्थ ढल्लन ने जो एक्सप्लेन किया अपनी टीका में, टीका का नाम है निबंध संग्रह। तो ढल्लन टीका में व्यन्यम सूत्र में विविध मार्गावृतम, यानी कि बात जो कंडक्शन है वो कफ दोष द्वारा विविध मार्ग से आवृत होकर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। तो वो कफ जो है विविध मार्ग आवृत कर शब्दवाही शिराओं में तिष्ठति होता है। तदा नरस्य, वही नर, तदा नरस्य, वही नर अप्रतिकार सेविनो, यदि प्रतिकार का सेवन नहीं करता। प्रतिकार क्या है? प्रतिकार शब्द आप चिकित्सा से जोड़ के देख सकते हैं, चिकित्सा से जोड़ के देख सकते हैं। तो वो रोगी अगर चिकित्सा नहीं करता है, संक्षिप्त है क्रिया योगो निदान परिवर्जनम स्वादादिनाम प्रतिघात विस्तरत पुनः। तो प्रतिकार का अर्थ चिकित्सा है, तो अप्रतिकार का अर्थ नहीं चिकित्सा करना है। तो ऐसे यानी कि अगर समय पे चिकित्सा नहीं की जाए, भवेतु होता है बाधिर्यम अशयंश्यम निश्चय ही खलु कवच निश्चय ही, ऐसे रोगियों को बाधिर्य हो जाता है। तो ये दो लाइन का जो श्लोक आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, तो इसमें दो बातें आप देख सकते हैं कि एक तो ये कंडक्शन मैकेनिज्म की इम्पिडमेंट है, इम्पिडमेंट का मतलब रुकावट है कफ दोष, ठीक है। आप ऑब्वियसली हियरिंग लॉस तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उस पर तो लिटरेचर बहुत बड़ा है। आप इवन कंडक्टिव हियरिंग लॉस पे और सेंसोरियल हियरिंग लॉस, कंजेनाइटल लंबा लिटरेचर, लेकिन अभी हम दो लाइनों में जो ये पहली लाइनें आप सोच सकते हैं, ऑर्गेनाइज लिटरेचर है जिसने पहली बार हियरिंग लॉस को ऑर्गेनाइज तरीके से लिखा, चैप्टर वाइज लिखा है। सो दिस इज the beauty of the or the unique feature of Ayurvedic literature is this is first organized ENT practice indication and the related literature is available. So आप ये देख लें, तो उसने कहा कि एक तो ये सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब अगर आप चिकित्सा नहीं करेंगे, ट्रीटमेंट को टाइम पे नहीं लेके आएंगे, देन इट कैन लीड टू अ कंप्लीट और द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज इज इनएविटेबल। तो और पहले में लाइन में तो उन्होंने जो है चिकित्सा नहीं कफ दोष की प्रधानता और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात की, और दूसरी में उन्होंने कहा कि अगर चिकित्सा नहीं की जाए तो निश्चित रूप से व्याधि जो है वो वर्धता को प्राप्त होती है, यानी कि वर्धित हो जाती है। और सभी प्रकार की व्याधियां अगर चिरकालिक हो जाएं तो फिर वो असाध्यता को प्राप्त होती हैं, ऐसा भी कहा है। तो बाधिर्य में वात के साथ कफज दोष का भी अवरुद्ध यहाँ बना रहता है। माधव निदान ने भी कहा यदा शब्द वह वायु स्रोत है आवृत्य तिष्ठति, शब्दवाही शिराएं जो है वो शुद्ध श्लेष्मा से आच्छादित या रुकावट पैदा करती हैं, तो वो बाधिर्य की उत्पत्ति होती है इससे। तो आप ये देखें कि अष्टांग हृदय कारणे विमर्श में देखें कि कर्णनाद आदि रोगों की उपेक्षा से भी बाधिर्य का होना माना है। यानी हृदयकार ने और संग्रहकार ने कहा, सुश्रुत ने इसको एंडोर्स नहीं किया है, सुश्रुत ने अलग अलग से श्लोक अपना लिखा,
लेकिन माधव संग्रहकार और हृदयकार ने कहा कि कर्णनाद आदि रोगों की उपेक्षा करने पर भी, यानी कि टिनाइटस भी की उपेक्षा करने से भी बाधिर्य होता है, जबकि सुश्रुत ने इसको एंडोर्स नहीं किया है। और माधवकार ने वातज और वात कफज दोनों तरह का बाधिर्य स्वीकार किया है। अब एक विशेष चर्चा का विषय है यहाँ पे कि प्रोग्नोस्टिक इंडिकेशन क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, बाधिर्य किसका ट्रीट करने योग्य है और किसका नहीं करना चाहिए। इट इज अ क्लियर इंडिकेशन or a slope or a words or a reference which is related to which patient has to be treated or which are not to be treated. तो उन्होंने कहा वर्जयेत, बाधिर्य की चिकित्सा, बाधिर्यम वर्जयेत, चिकित्सा नहीं करनी चाहिए किसकी, बाल की, यानी कि बाल का मतलब पीडियाट्रिक पेशेंट की चिकित्सा नहीं करने को कहता है। तो क्या क्लास बनाया, पीडियाट्रिक पेशेंट्स की नहीं करने की कहा। क्यों? क्योंकि दे रिप्रेजेंट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अ कंजेनाइटल हियरिंग लॉस पेशेंट। कंजेनाइटल कैपेसिटी की वजह से बाल की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, पीडियाट्रिक पेशेंट्स की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। वर्जयेत का मतलब त्याज्य होता है, इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो कंजेनाइट, क्योंकि क्योंकि ये सिंड्रोमिक चिल्ड्रन हो सकते हैं या फिर कंजेनाइटल हियरिंग लॉस और लॉस ऑफ कॉक्लियर फोल्ड्स और कॉमन कैनाल और सेंट्रल नर्वस और सीपी or a variety of disorders are there which can lead to a pediatric population hearing loss, and essentially anatomical perspective has to be considered, and by giving some kind of a Karnapur, you are not going to have a developmental pathology catered. So next class is वृद्ध, यानी कि जो ओल्ड एज का हियरिंग लॉस है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, presbyacousis, presbyacousis, which is always a degenerative hearing loss, a hearing loss which is related to a significant amount of degeneration all along the basilar membrane, to the falling of the hair cell, to the fracturing of the hair cells, to the change in the content of endolymph and the perilymph. The potassium content is again changed, the striatal vascularization, the afferent impulses are slowed down as a result of the fibrosis and loss of the especially outer hair cells. Apart from that, the degeneration in case of this presbyacousis or old age related here is stretched all along the conduction pathway up to the central nervous system. So it is not only a single location, or it is not only the cochlea which is responsible for a degeneration pathology in case of old age related hearing loss. Whole of the system has got some kind of a degenerative procedure, like every cell has got some kind of a degeneration in case of a old age related pathology. So and बाल का, वृद्ध का और चिरियो, यानी कि जो पुराना, अब पुराने की टीकाओं ने कहा कि 1 वर्ष पुराना हो, ये नहीं बताया कि कितना, तो लेकिन 3 केसेस में चिकित्सा के लिए मना किया। बाल में नंबर 1, the pediatric population which is highly have a chances of having a congenital hearing loss or a pinna pathology, canal or tympanic membrane, middle ear or cochlea or beyond cochlea, retrocochlear, even central pathology. So there are huge class which are going to be encompassed in BAL class. Next is a Vruddh, again a strong suggestion that all of the progressive degenerative, inevitable degenerative pathology which extends from right from the stiffening of the tympanic membrane, stiffening of the malleus and into the stapedial joint, fixation of the stapes, the degeneration of the basilar membrane. So that is again inevitable. You can't have much of a treatment that can be offered in these kind of a patients also. And hearing aid is again prescribed or suggested to majority of the patients today also. And next is a which is very old, जो 1 वर्ष से पुराना हो, डिस्चार्जिंग ईयर हो। इसकी वजह आप ये समझ सकते हैं कि the pathology has gone beyond the treatment domain or realm, and the patient has got some kind of a destructive pathology, like you can see in a case of a cholesteatoma, a new cholesteatomatous patient or cholesteatoma patient
has got a organized or limited sac in the attic region, but after some time it expands, it disrupts the ocular chain as well, and it has got an expansile capacity in the middle ear also, and even can enter into the internal ear, form a fistula also. So time is also important, and properly getting opinion, expert opinion in the initial part of the disease is so very important in order to have a successful outcome. तो आपको इसकी साध्यता असाध्यता बाधिर्य का याद करना चाहिए, आपको श्लोक भी याद करना चाहिए। चिकित्सा के संदर्भ में फिर आपको याद रखना है कि ये चिकित्सा का संदर्भ में आपको कहा कर्णशूले प्रणादेश बाधिर्य श्रेयो अपि चतुर्णाम रोगाणाम सामान्यम भैषजम विदु, यानी कि आपको 4 रोगों की चिकित्सा शूल की, नाद की, श्वेड की और बाधिर्य की एक समान करनी चाहिए। और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए, पहले 4 में से एक आ सकता है एज पर एज कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसा ये श्लोक तो लिखना ही है, लेकिन आपको कर्णशूल की चिकित्सा भी लिखनी होगी इसके साथ। तो इसकी चिकित्सा में अष्टांग हृदय ने कहा इसकी चिकित्सा वातशूल के समान करनी चाहिए और प्रतिक्षाय के समान भी करनी चाहिए, ऐसा भाव प्रकाश में भी शिक्षित ने भी कहा। नेक्स्ट इज अब एक इसमें अष्टांग संग्रहकार का चिकित्सा का बाधिर्य चिकित्सा क्रम है कि किस क्रम से चिकित्सा करें बाधिर्य के रोगी में, तो इसको बोलते हैं बाधिर्य का चिकित्सा क्रम। तो उस चिकित्सा क्रम में पहले स्नेहन कराएं फर्स्ट, फिर स्वेदन कर्म कराएं नंबर 2, फिर नस्य कराएं नंबर 3, नंबर 4 इज शिरोवस्ती, नस्य शिरोवस्ती ये 4 है। तो इसको क्रम से करने पर आपको इसको बोलते हैं चिकित्सा का बाधिर्य का चिकित्सा क्रम, स्नेहन, स्वेदन, नस्य, शिरोवस्ती और वस्ती, शिरोवस्ती और फिर वस्ती, इसको क्रम से प्रयोग करने पर आपको बाधिर्य रोग में सफलता मिल सकती है, ऐसा कहा। इसके अतिरिक्त योग रत्नाकर ने, भाव प्रकाश योग रत्नाकर कंटेम्प्रेरी हैं और ओवरलैपिंग भी हैं दोनों के कंटेंट में, आप देख सकते हैं। तो ये 4-5 औषधियों का प्रयोग, यानी कि रोगाधिकार विशेष की औषधियां भी उन्होंने कहा, अपामार्ग तैल और बिलवादी तैल। बिलवादी तैल बाधिर्य रोगाधिकार की विशेष औषधि, ठीक है। जिस प्रकार आपने देखा कि दीपिका तैल कर्णशूल रोगाधिकार की औषधि है, सभी शास्त्र में आई है, सभी स्क्रिप्चर्स में आई है। इसी प्रकार बिलवादी तैल यू हैव टू फोकस एंड दिस इसका डिजीज डोमेन यानी कि रोगाधिकार वो बाधिर्य है। इसके अतिरिक्त निर्वंड्य आदि तैल भी काफी फेमस औषधि मिलती है, ठीक है। इसके अलावा दिस इज द मॉडर्न काउंटर पार्ट, एक और औषधि हम लेंगे, अभी एक और डिजीज इसमें हम लेंगे। ये द मॉडर्न पार्ट वी हैव ऑलरेडी accomplished in previous lectures which are also available on the same channel. In the meantime you can subscribe the channel also, and if kind of a question or in any kind of a suggestion, any kind of a difficulty you are having, you can comment in the comment section also of the channel. So next disease is going to be a Karnasrav. So again, the disease itself is suggestive of any kind of otorrhea. Otorrhea is any kind of a discharge, be it is a sanguineous discharge or a blood mixed discharge or a mucopurulent discharge or a purulent discharge or a watery discharge, all are encompassed into, ये सभी को जो है वो कर्णस्राव में ही लेके आए हैं। तो आप सभी अगर आप ट्रेडिशन को देखें और ट्रेंड को देखें शास्त्र का, स्पेशली शिशु संहिता की बात करते हैं, तो ये जो है एक डिजीज में जो है अगर मॉडर्न काउंटर पार्ट की तरफ चले तो बहुत सारे डिसऑर्डर इसमें एनकम्पास करते हैं। तो एक श्लोक में ज्यादा, थोड़े में ज्यादा कहने का हमारा जो है इसमें ट्रेडिशन रहा है स्क्रिप्चर्स का। तो बहुत लंबा लिटरेचर नहीं लिखा, एक रोग में बहुत सारे रोगों को हम इंकलकेट कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं मॉडर्न की अगर टेक्सचुअल रेफरेंसेस की बात करें तो this disorder Karnasrav is related to any kind of a discharge from the ear.
So discharge from the ear is a very common OPD presentation as well. In ENT OPD, most of the otological patients come with a complaint of either a hearing loss is very common, a pain in the ear is very common, and the third one is discharge from the ear. So you can see that the clinical appreciation is well appreciated in our scripture. हमारे जो scriptures हैं वो clinically जो है वो present practice को भी endorse करते हैं, follow करते हैं, और उसके against नहीं है. तो पेशेंट ने जिस तरह से आके अपने आप को प्रेजेंट किया, उसके डिस्चार्जेस की कंसिस्टेंसी कैसी है, उसका निदान क्या होगा, तो वो सब उन्होंने एक श्लोक में लिखने की कोशिश की है. तो सुश्रुत में लिखा है श्लोक, ये हम यहाँ से पढ़ेंगे. सुश्रुत का ही आपको याद करना पड़ेगा फाइनल में. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट सुश्रुतानुका. शिरो अभिघाताद अथवा निमज्जतो जले प्रपाकाद अथवा अपि विद्रधे प्रवेत्तु पूयम श्रवणो अनिलाभ्रत स कर्णस्राव इत प्रकीर्तितः. तो इस व्याधि में उन्होंने निदान का भी वर्णन किया है. निदान का मतलब इटियोपैथोलॉजी का भी, इटियोपैथोजेनेसिस का भी वर्णन किया. तो पहला शब्द ही यूज किया शिर में अभिघात से, यानी कि ट्रॉमा ऑफ द हेड, ट्रॉमा की बात की. ट्रॉमा से कर्णस्राव का अर्थ कैसा है? तो ट्रॉमा से जो, यानी कि जो the most common trauma leads otorrhea is either is a blood mixed otorrhea or a CSF otorrhea, or the middle ear roof is called as segment tympani, and in a case of like in a case of a road traffic accident, you can have a breach in the roof of the middle ear, and there will be leakage of the CSF in the middle ear. The perforation of the tympanic membrane is there, and hence the CSF will be oozed out into the canal, and this is called as CSF otorrhea, similar to the CSF rhinorrhea, when there is a leakage of, or a CSF leak. When the CSF is leaked through the cribriform plate or ethmoidal junction into the nasal cavity, that is called as CSF rhinorrhea. And when there is a fracture of the temporal bone, we have got three types of fractures of the temporal bone. So we have got three types of longitudinal, horizontal, and mixed. So in case of a temporal bone fracture, you can easily have leakage of the CSF through the ear canal, which is called as CSF otorrhea. So शिर में अभिघात से निमज्जतो जले, यानी कि जल में ज्यादा डुबकी लगाने से, अथवा या विद्रधि के पाक होने से. तो थ्री डिस्टिंक्ट कंडीशन वी हैव गॉट. Number one is सिर में अभिघात से, which is clearly indication of a CSF otorrhea with blood mixed otorrhea, because obviously the laceration of the soft tissue from the canal tympanic membrane will also be inevitable in case of temporal bone fracture or road traffic accident. So blood mixed otorrhea or CSF otorrhea, या फिर निमज्जतो जले, जल में डुबकी लगाने से. ये इसका अर्थ होगा कि जो प्रीवियसली CSOM इनएक्टिव था, that can activate itself, active CSOM, inactive CSOM to active CSOM because of entry of a contaminated water into the canal and into the middle ear. So second one is suggestive of a activation of a CSOM. The first one is CSF otorrhea. The second one is activation of CSF, chronic suppurative otitis media, and third one is rupture of a furunculosis. What is furunculosis? Furunculosis is a hair follicle pyogenic folliculitis. It is acute localized otitis externa or perforation or rupture of a follicle, hair follicle pyogenic infection. These are the three conditions which can lead to कर्णस्राव. प्रवेत्तु पूयम, पूये का स्राव होगा. हालांकि पूये वर्ड से यहाँ पस तो नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रॉमा के बाद तो पस नहीं आ सकती. ऑब्वियसली पस जैसा लग सकता है. This CSF otorrhea can certainly look like a pus as far as visualization is concerned, but this can be misleading. तो पूये का स्राव नहीं, श्रवणो अनिलावृत, और वो अनिल जो वो जो ईयर जो है, यानी कि कर्ण जो है, वो वात से आवृत होगा. कर्ण संस्राव इधर प्रकीर्तित, इसको कर्ण स्राव जानना
चाहिए। तो आपको इसमें 3 डिस्टिंक्ट केसेस मिलेंगे, यानी कि 3 डिस्टिंक्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, CSF फोटोरिया, नंबर 2 इज एक्टिवेशन ऑफ द inactive CSF, नंबर 3 इज रप्चर ऑफ अ पेरेंकिलोसिस, और उसकी वजह से पूये का स्राव, पूये को आप यहाँ पस नहीं समझते, वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग स्राव सभी को पूये में समाहित किया है। और चिकित्सा की जब तक बात करें तो ये श्लोक भी आपको देख लेना चाहिए। चिकित्सा में शिरोविरेचनम, शिरोविरेचन करना चाहिए, धूपन कर्म करना चाहिए। कर्ण धूपन कर का अर्थ है आप जो है जो जिसमें वॉलेटाइल ऑयल होते हैं, जैसे कि राल, सर्ज या गुग्गुलू, इनको लेके और अग्नि के ऊपर रख दे तो उससे जो धुआं, धूपन कर्म की, तो आप कैनाल की तरफ झुक के पेशेंट को और धूपन लेना चाहिए। तो इसका प्राइमरीली एंटी a microbe kind of a treatment which can be offered to the patient, and because these medications or these drugs has got a volatile property, and the patient can be offered a dhupan karma also. इसके अतिरिक्त पूर्णम, कर्ण पूर्ण भी करें, कर्ण पूर्ण भी करें, प्रमार्जन कर्म करें, प्रमार्जन का मतलब क्लीन करें, उसको क्लीन करें। कार्पास वेस्टिक शलाका, जैसे कि जिसको हम जैसे ओपीडी में बनाते हैं, जॉनसन प्रोब के ऊपर हम कॉटन लगा के, तो उसको आयुर्वेद में जो शलाका 28 प्रकार की जो शलाकाएं आई, उसमें से 6 प्रकार की शलाकाएं कार्प शिरोवेष्टित शलाकाएं, उनसे प्रमार्जन का मतलब उसको क्लीन करें। और फिर धावन कर्म करें, धावन का अर्थ है उसको पंचशीरी वृक्षों से उसको क्लीन करें, धो लें उसको, जैसे मॉडर्न में हम बीटाडीन से ईयर को वॉश करते हैं बिफोर सर्जरी, दैट इज अ वे ना धावन कर्म। और जैसा उचित समझे रोग वैद्य को वैसा करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त एक विशेष तेल, 2 तेलों का यानी कि रोगाधिकार विशेष तेलों का भी उल्लेख आया है, वो दोनों आपको याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज शैवालादि तेल और दूसरा है प्रियंगवादी तेल। इन दोनों का प्रयोग भी कर्णस्राव के संदर्भ में, ये रोगाधिकार विशेष औषधियां हैं, इनको नाम आपको याद करना पड़ेगा। तो इस तरह से चिकित्सा खत्म इसकी हो जाती। तो अगले इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, द स्क्रिप्चरल पार्ट ऑफ कर्ण रोगास। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।